Hello students, good morning. Welcome to SI Sonic classes. Students, we were reading chapter 4, Pianist Mutton of our English literature book as we searched. In our last video, our topics were summary of first and second stanzas of this chapter 4, Pianist Mutton, and after student, our next topic was hard words, 20 hard words of this chapter 4, Pianist Mutton. So student, we have read and explained summary first and second stanzas of this chapter 4, Pianist Mutton in our last video, and we have also read and note down 20 hard words of this chapter 4, Pianist Mutton in our fair English literature notebook in our last video. So we have completed all this work in our last video, and since today's our topics are summary of third and fourth stanzas of this chapter 4, and our next topic is word meaning of this chapter 4. So student, firstly we will read and explain summary of third and fourth stanzas of this chapter 4, and after student we will read and note down word meaning of this chapter 4 in our fair English literature notebook in our 2 days class. So all students pay special attention in class and listen to my words clearly. Firstly, we are going to read and explain summary of third and fourth stanzas. Okay, but before it, I am going to revise summary of first and second stanzas which we have read. Okay, in our last class. So students, this chapter name is Pianist Mutton of chapter 4. Okay, pianist it's mean a person who plays piano, we call pianist. एक व्यक्ति जो piano play करता है उसे बोलते हैं pianist. And mutton it's a name of a person who play piano. Okay, एक व्यक्ति का नाम है जो piano play करता है, उसका name है यहाँ पे mutton. Okay, तो the name of this chapter 4 is Pianist Mutton. It's mean piano play करने वाला mutton. Okay, this chapter is related to art and culture. Chapter 4 Pianist Mutton ये art और culture से related है, कला और संस्कृति से related है. We have read in our last class the summary of first and second stanzas that. So let's see, you are about to read a short biography of an Israeli pianist Matan Fizov. Matan is a talented musician who has traveled all over the world and has even performed in India. Okay, तो students अब आप जा रहे हैं जो एक पर्सन है जिसका नेम है मटन फिजो. ओके, जो पियानिस्ट है, पियानो प्ले करता है, इज़राइल से बिलोंग करते हैं, एक इज़राइली पियानिस्ट है. ओके, और इसकी बायोग्राफी को, उसकी जीवनी को रीड करने जा रहे हैं. ओके, हेयर द मीन ऑफ बायोग्राफी दैट जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन की लाइफ के बारे में कुछ राइट करता है, उसके इंसाइडेंट, उसकी लाइफ के इंसाइडेंट के बारे में कुछ राइट डाउन करता है, तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी. इट्स मीन जीवनी. ओके, तो स्टूडेंट अब आप जा रहे हैं एक इज़राइली पियानिस्ट मटन फिजोव की जीवनी के बारे में रीड करने. मटन इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन हु हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज़ एवन परफॉर्म इन इंडिया. ओके, तो मटन जो है, ओके, जो कि एक इजरायली पियानिस्ट है, ये वर्ल्ड के सभी जगहों पे ट्रेवल कर चुके थे, यात्रा कर चुके थे, और इन्होंने इंडिया में भी अपनी परफॉर्मेंस दी थी. ओके, और बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन थे. ओके, एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है मटन. और टैलेंटेड म्यूजिशियन इट्स मीन एक बहुत ही प्रतिभाशाली म्यूजिशियन. ओके, टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली. सो वी हैव ऑल हर्ड स्टोरीज अबाउट द ग्रेट म्यूजिकल जीनियसेस. द 18th century Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart began playing the piano at the tender age of 4 and began composing his own little pieces of music at the age of 5. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो हमने बहुत सी म्यूज़िकल जीनियस के बारे में स्टोरीज़ को सुना है. हम सभी ने महान प्रतिभाओं के बारे में कहानियाँ सुनी है. ओके, 18वीं सदी के एक ऑस्ट्रियाई संगीतकार थे जिनका नेम था वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट. ओके, इन्होंने ओनली 4 ईयर की एज में, जब ये 60 साल के थे, तब से इन्होंने पियानो बजाना शुरू कर दिया था, और 5 साल की उम्र में संगीत के अपने छोटे टुकड़ों की रचना करना शुरू कर दिया था. तो बहुत कम एज में इन्होंने, मतलब बहुत इतने टैलेंटेड है कि इतनी कम एज में इन्होंने पियानो प्ले करना शुरू कर दिया था. ओके, और साथ ही कंपोजिंग का भी वर्क शुरू कर दिया था. द 19th century Hungarian composer Franz Liszt began learning to play the piano at the age of 6 and he played his first public concert at the age of 11. ओके, और 19th सेंचुरी में एक पर्सन थे जिनका नेम था फ्रेंच लिस्ट. ओके, तो 19वीं सदी के जो ये हंगेरियन संगीतकार थे. ओके, तो 19वीं सदी के हंगेरियन संगीतकार फ्रांस लिस्ट ने 6 ईयर की एज में, 6 साल की उम्र में पियानो बजाना सीखना शुरू कर दिया था. उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम खेला. ओके, एंड इन स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दिस ट्रेडिशन ऑफ द म्यूजिशियंस who have spent almost their whole life honing their craft has continued through the centuries, with modern musicians often having begun learning to play an instrument very very early in life. Here the meaning of honing. Okay, here the meaning of honing, that honing means strengths, that we can to say that a period, over a period of time. Okay, it's mean over a period of time कि समय की अवधि में कुछ करना. ओके, समय की अवधि में कुछ करना, उसे बोलते हैं हॉनिंग. ओके,
तो इट्स मीन हो गया कि होनिंग मीन्स प्रखर करना बोल सकते हैं, ओके, ओवर अ पीरियड टाइम समथिंग मेकिंग परफेक्ट, ओके, समय की अवधि में कुछ परिपूर्ण बनाना उसे बोलते हैं हॉर्निंग, ओके। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रिवाज है हमारे जो चली आ रही है, ओके, तो ये एक रिवाज सा बन गया है कि मतलब बहुत कम एज में, मतलब ये जो म्यूजिशियंस होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं बहुत ही कम एज में, ओके। तो इट्स मीन कि ये एक रिवाज है, ओके, संगीतकारों की परंपरा जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन अपने शिल्प का सम्मान करते हुए बिताया है, सदियों से जारी, ओके। आधुनिक संगीतकारों को अक्सर जीवन में बहुत पहले ही एक बार बजाना सीखना शुरू करें, वो चाहे फ्लूट हो या गिटार हो या पियानो हो, ओके। And in contrast, the Israeli pianist Matan Fizov came to his instrument relatively late. He was 13 when he began learning to play the piano. He made up for lost time by making rapid progress. He worked hard for 10 years, undertaking a regimen of training and practice under two different teachers and mentors. The first was Mrs. Eva Malkin, while the second was Jonathan Jack, a professor at the Bushman Mehta School of Music in Tel Aviv University. With dedication and drive, Hizov mastered the piano in under 10 years, which is a feat to be extremely proud of. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पियानिस्ट थे जिनका नेम था मटन फिशोव, ओके। तो स्टूडेंट्स जो इसके विपरीत जो इजरायली पियानो वादक मटन फिशोव अपने वाद्ययंत्र में अपेक्षाकृत देर से, ओके, क्योंकि जो वॉल्फगैंग अमेडियस थे जो ऑस्ट्रेलियन कंपोजर थे, ये ओनली 4 ईयर के थे, ओके, उनकी एज थी ओनली 4 ईयर के थे, 4 साल के, तब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था पियानो प्ले करना। और इसके आफ्टर इट स्टूडेंट जो हमारे सेकंड थे वो हंगेरियन कंपोजर थे फ्रांज लिज्ट, और इन्होंने जब ये 6 ईयर के थे तब इन्होंने पियानो सीखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो मटन फिशोव थे जब ये 13 ईयर के हुए थे तब इन्होंने पियानो प्ले करना शुरू किया था, ओके, लर्न करना शुरू किया था। तो इसके विपरीत इजराइल पियानो वादक मटन फिशोव अपने वाद्ययंत्र में अपेक्षाकृत देर से, वे 13 वर्ष के थे जब इन्होंने पियानो बजाना सीखना शुरू किया था, ओके। इन्होंने तेज़ी से प्रगति करके खोए हुए समय की भरपाई की। इन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत की, ओके, एंड इन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत की, 10 ईयर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। एंड आफ्टर इट उन्होंने क्या किया, इनके 2 अलग अलग टीचर्स थे, ओके। इट्स मीन उन्होंने 2 अलग अलग शिक्षकों और अकाओं के तहत परीक्षा और अभ्यास का एक नियम बनाया। पहली थी श्रीमती ईवा मल्किन थी, ओके, और इसके बाद जो दूसरे थे वो थे जोनाथन जैक थे, जो कि बुशमैन मेहता स्कूल, ओके, और ये एक टेल अवीव यूनिवर्सिटी का एक म्यूजिक स्कूल था बुशमैन मेहता स्कूल। इसके प्रोफेसर थे जोनाथन जैक, ओके। तो इन्होंने जोनाथन जैक जो कि एक प्रोफेसर थे बुशमैन मेहता स्कूल संगीत का एक स्कूल के, और सेकंड फर्स्ट हैंड के मिसेस ईवा मल्किन से इन्होंने क्या किया था, इनसे मतलब ये इनके अध्यापक थे, इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी म्यूज़िक की, ओके। एंड आफ्टर स्टूडेंट क्या किया इन्होंने कि फिजोव ने 10 साल से कम में पियानो में महारत हासिल कर ली, ओके, जिस पर बेहद गर्व है। तो बहुत जब ये 10 ईयर इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और उन्होंने क्या किया, जो इनकी खोई हुई समय थी उसकी भरपाई की, ओके। और इस पर बहुत गर्व है कि इन्होंने मतलब फिजोव ने 10 साल से कम समय में पियानो में महारत हासिल कर ली, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन समरी ऑफ 3rd and 4th स्टैंडर्ड। सो लेट्स सी। फिजोव इज़ अ ट्रेंड कॉन्सर्ट पियानिस्ट, ओके। तो फिजोव जो है ये एक ट्रेंड कॉन्सर्ट पियानिस्ट है, ओके। पियानिस्ट मीन्स पियानो प्ले करने वाला, अ पर्सन हु प्लेस पियानो वी कॉल पियानिस्ट। तो फिजोव एक ट्रेंड मीन्स प्रशिक्षित, ओके, एंड कॉन्सर्ट मीन्स संगीत कार्यक्रम, एंड पियानिस्ट मीन्स पियानो वादक, पियानो को प्ले करने वाला। फिजोव इज़ अ ट्रेंड कॉन्सर्ट पियानिस्ट, इट्स मीन फिजोव एक प्रशिक्षित संगीत कार्यक्रम पियानो वादक है। अ पियानो रिसाइटल इज़ अ परफॉर्मेंस गिवन बाई जस्ट 1 or 2 म्यूजिशियन, ओके। इट्स मीन कि एक पियानो मीन्स एक पियानो रिसिटल, ओके। हेयर द मीनिंग ऑफ रिसिटल दैट गायन, ओके, जस्ट मीन्स सिर्फ, ओके। तो स्टूडेंट्स एक पियानो गायन सिर्फ 2 या 2, ओके, संगीतकारों द्वारा दिया गया एक प्रदर्शन है, ओके, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रदर्शन है। तो एक पियानो गायन सिर्फ 2 या 2 संगीतकारों द्वारा दिया गया एक प्रदर्शन है। And after it, let's say the piano recital as a type of performance was first invented in the 19th century, okay। तो इट्स मीन कि एक प्रकार के प्रदर्शन के रूप में पियानो वादन पहली बार 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में इसका आविष्कार किया गया था। एंड after it was a composer Franz Liszt, the same one you read out above, who decided that if he was playing
a concert, the focus ought to be only on him. Okay, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पियानो वादक थे फ्रेंच लिस्ट. ओके, तो इट वाज द कंपोजर फ्रेंच लिस्ट. इट्स मीन कि ये संगीतकार फ्रेंच लिस्ट थे. ओके, वही जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था. तो इन्होंने तय किया था कि अगर वे एक संगीत कार्यक्रम खेल रहे, अगर ये किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें तो ध्यान केवल उन पर ही होना चाहिए. ओके, और फिर इन्होंने क्या किया कि ये सोच रहे थे कि अगर ये किसी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में तो ध्यान इन पर ही होना चाहिए सबका. ओके, एंड up until then concerts had always included multiple musicians who set the stage. Okay, it's mean कि ये सोचते थे कि अगर वो किसी भी कहीं पे भी परफॉर्म करे, किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे तो सबका ध्यान इन्हीं पर होना चाहिए, सबका फोकस इन्हीं पर होना चाहिए. एंड तो ये सोचते थे कि ध्यान केवल उन्हीं पर होना चाहिए तब तक कि आप अंटिल दैन मीन्स होते हैं तब तक. ओके, संगीत कार्यक्रम जो कॉन्सर्ट होते थे में हमेशा स्टेज जो होता था, मंच होता था, वो साझा करने वाले विभिन्न वेरियस मीन्स विभिन्न. ओके, और संगीतकार शामिल होते थे. तो तब तक जब ये सोच रहे थे कि हाँ इन्हीं पर सबका ध्यान होना चाहिए, उस टाइम की बात हो रही है. तो तब तक संगीत कार्यक्रमों में हमेशा मंच साझा करने वाले विभिन्न संगीतकार शामिल होते थे. ओके, डिफरेंट टाइप वहाँ पे म्यूजिशियंस आते थे. एंड आफ्टर इट स्टूडेंट्स क्या होता है कि बट लिस्टर यूज द मेमोरेबल फ्रेज ली कॉन्सर्ट Mr. Moy, the concert is me. In a letter to her, even came up with the term the concert is me in a letter to a friend, and in the year 1840, he pioneered the idea of the solo performer. He even came up with the term solo recital. Okay, it's mean लेकिन जो लिस्ट थे इन्होंने मेमोरेबल मीन्स यादगार. ओके, तो लेकिन लिस्ट ने यादगार वाक्यांश, इनका एक फ्रेज था, एक वाक्यांश था, वो फ्रेज था ली कॉन्सर्ट सिस्ट मोई. ओके, द कॉन्सर्ट इज़ मी. इट्स मीन ये कॉन्सर्ट मेरे लिए है, ये संगीत कार्यक्रम मेरे लिए, इनका एक फ्रेज था. ओके, तो एक दोस्त को लिखे पत्र में और 1840 में 1840 में उन्होंने एकल कलाकार के विचार का बीड़ा उठाया. ओके, एंड इवन मीन्स यहाँ तक कि. ओके, एंड आफ्टर इट स्टूडेंट क्या किया, ही एवन केम अप विद द टर्म सोलो रिसाइटल. इवन मीन्स यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया है, यह द मीन ऑफ सोलो रिसाइटल. ओके, सोलो रिसाइटल मीन्स होता है सोलो, इट्स मीन होता है एकल, एंड हियर द मीन ऑफ रिसाइटल दैट एकल वादन संगीत. रिसाइटल मीन्स संगीत का कार्यक्रम. ओके, एंड सोलो मीन्स होता है कि एकल, तो हियर द मीन ऑफ सोलो रिसाइटल दैट एकल वादन. ओके, सोलो मीन्स होता है एकल एंड रिसाइटल मीन्स होता है संगीत का कार्यक्रम. एंड फुल फॉर्म ऑफ सोलो रिसाइटल दैट एकल वादन. द मीन ऑफ सोलो रिसाइटल है एकल वादन. ओके, मतलब अकेला प्ले करने वाला. तो यहाँ तक कि उन्होंने एकल वादन को आगे भी बढ़ाया. ओके, लेट्स सी फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैप्टर. फिजोफ इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट ट्रेडिशन. द पॉइंट ऑफ अ रिसाइटल इज द शोकेस द टैलेंट ऑफ अ सिंगल म्यूजिशियन. सिंगल म्यूजिशियन मीन्स अकेला वादन. ओके, अकेला संगीतकार. ओके, म्यूजिशियन मीन संगीतकार. टू शो ऑफ दियर मैस्ट्री ऑफ दियर चूजन इंस्ट्रूमेंट. हियर द मीन ऑफ मैस्ट्री. ओके, मैस्ट्री मीन्स होता है बीइंग एक्सट्रीमली स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी. ओके, इट्स मीन किसी विशेष विषय या गतिविधि में मतलब बहुत स्किल होना. ओके, अत्यंत कुशल होना, उसे बोलते हैं मैस्ट्री. ओके, श्रेष्ठता. ओके, एंड तो चूज एन इंस्ट्रूमेंट्स वाद्यंत्र. ओके, तो फिजोफ इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट ट्रेडिशन. इट्स मीन फिजोफ एक महान परंपरा का एक हिस्सा है. ओके, फिजोफ इस महान परंपरा के एक हिस्सा है, जो एक महान परंपरा है ये. तो फिजोफ इस महान परंपरा के एक हिस्सा है. द पॉइंट ऑफ अ रिसाइटल इज टू शोकेस द टैलेंट ऑफ अ सिंगल म्यूजिशियंस टू शो ऑफ देयर मैस्ट्री ऑफ देयर चूजन इंस्ट्रूमेंट. इट्स मीन कि एक गायन का उद्देश्य, अ पॉइंट ऑफ अ रिसाइटल मीन्स एक गायन का उद्देश्य. ओके, अ सिंगल म्यूजिशियन मीन्स एकल संगीतकार. ओके, एक गायन का उद्देश्य एकल संगीतकारों की टैलेंट, इट्स मीन प्रतिभा का टू शो. हियर द मीन ऑफ टू शो दैट मीन्स होता है प्रदर्शन करना, दिखाना. ओके, तो एक गायन का उद्देश्य एकल संगीतकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है. ओके, एंड उनके चुने हुए, चूजन मीन्स चुने हुए. ओके, लिस्ट कैप्टिवेटेड ऑडियंस बाय प्लेइंग म्यूजिक कंपोज्ड बाय द ग्रेट. ओके, हियर द मीन ऑफ कैप्टिवेटेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स अटैच्ड एंड हील द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ समवन. ओके, किसी व्यक्ति का ध्यान को, उसकी रुचि को अपनी और आकर्षित करना. ओके, कैप्टिवेटेड करना, आकर्षण. ओके, आकर्षित किया हुआ. तो लिस्ट द कैप्टिवेटेड ऑडियंस बाय प्लेइंग म्यूजिक कंपोज्ड बाय द ग्रेट. इट्स मीन कि जो लिस्ट थे ना,
तो इन्होंने क्या किया है लिस्ट ने कि अपने चुने हुए, चूजन मीन्स चुने हुए, वाद्य यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट मीन्स वाद्य यंत्र, ओके। तो अपने चुने हुए जो इनके वाद्य यंत्र थे, ओके, उनमें इन्होंने महारत दिखाई है, ओके। तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने अपने चुने हुए वाद्य यंत्र में महारत दिखाई, ओके। एंड स्टूडेंट्स आफ्टर इट लेट्स लुक एट द पेज नंबर 41, टर्न योर पेज फॉरवर्ड। And classical musicians from Johannes Sebastian Bach to Frederick Chopin as well as playing his own compositions. Fisov too has been inspired by has played the music of Chopin as well as Johannes Brahms, in addition to more modern composers like the Israeli Paul Ben Haim. He is known for his virtuosity and talent, and his creative interpretations of well-known musical pieces, okay। तो क्लासिकल म्यूज़िक, इनको ये जो यहाँ हमारी स्टोरी के, ओके, जो फ्रेंच है, तो इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ओके। तो लिस्ट में महान शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा रचित, ओके, कंपोज मीन्स रचित, जो इनके महान संगीतकार जो थे इनके जोहानिस सेबेस्टियन बैच, ओके। तो जो जोहानिस सेबेस्टियन बैच हो गए, ओके, एंड से लेकर फ्रेडरिक चॉपिन, ओके। तो जोहानिस सेबेस्टियन बैच से लेकर जो फ्रेडरिक चॉपिन से ये जो फ्रेडरिक चॉपिन तक इन्होंने क्या किया है, फ्रेडरिक चॉपिन तक साथ ही साथ अपनी कंपोजिशंस में रचनाओं को बजाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, ओके। इट्स मीन कि लोगों का मन जीत लिया, ओके। एंड जस्ट इन्होंने जोहानिस सेबेस्टियन बैच से लेकर फ्रेडरिक चॉपिन तक के साथ ही साथ अपनी सारी रचनाओं को बजाकर दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया, लोगों का दिल जीत लिया, ओके। फिजोव टू हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाई एंड हैज़ प्लेड द म्यूजिक ऑफ चॉपिन, ओके। तो जो फ्रेडरिक थे, ओके, तो इन्होंने क्या किया, फिजोव ने इजरायली पॉल बेनहैम जैसे अधिक आधुनिक संगीतकारों के अलावा चॉपिन के संगीत के साथ साथ जॉनसन ब्राह्म्स से भी प्रेरित है, ओके। तो ये जॉनसन ब्राह्म्स से भी प्रेरित है और खिलाया, और वे अपने गुण और प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, ओके, और प्रसिद्ध संगीत टुकड़ों को उनकी रचनात्मक व्याख्या के लिए जाने जाते हैं, ओके। तो ये अपने टैलेंट के लिए जाने जाते हैं, ओके। एंड जो फिजोव है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, और ये किससे इंस्पायर हुए, ये जॉनसन सेबेस्टियन बैच से इंस्पायर हुए, फ्रेडरिक चॉपिन से इंस्पायर हुए, और सबसे ज़्यादा चॉपिन से इंस्पायर हुए, ओके। तो स्टूडेंट वी हैव रीड थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर 4, and I hope you must have understood summary of third and fourth stanza. And we will definitely read a summary of fifth stanza, but not right now in our today's class. We will read and explain summary of fifth number stanza in our next video, okay. So now we are going to read and write down word meaning of this chapter 4. So let's see word meaning of this chapter 4. Chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is pianist mutton. It's mean piano play करने वाला मटन, okay. Let's see word meaning. Word it's mean होता है शब्द and meaning means अर्थ. Word meaning it's means शब्द. Your first number word is feat, F-E-A-T, feat, and the meaning of feat, okay. feat means स्टूडेंट्स होता है साहसिक कार, okay, या करतब बोल सकते हैं या कमाल बोल सकते हैं, okay. And the meaning of feat is an achievement that requires great courage, skill और strength, okay. It's mean कि एक उपलब्धि जिसके लिए बहुत साहस, कौशल्य, शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं feat. It's mean साहसिक कार्य, कमाल या कर्तव्य, okay. Let's see second number word. Your second number word is memorable, M-E-M-O-R-A-B-L-E, memorable. Here the meaning of memorable that यादगार, okay, स्मरणार्थ, okay. And the meaning of memorable is something that is worth remembering, okay. Something that is worth remembering. It's something means कुछ, okay. Something that is worth means होता है able, okay. It's mean योग्य, लायक, okay. तो something that is worth remembering it mean कुछ ऐसा जो याद रखने लायक हो, कुछ ऐसा जो याद रखने योग्य हो, okay. Your third number word is pioneered, P-I-O-N-E-E-R-E-D, okay. Pioneered, and the meaning of pioneered is to be one of the first people to do something. It's mean कि कुछ करने वाले पहले लोगों में कुछ करने वाले लोगों में से पहला होना, ओके. कुछ करने वाले पहले लोगों में से एक होने के लिए उसे बोलते हैं pioneered, ओके. इट्स मीन कुछ करने वाले पहले लोगों में से एक होने के लिए, ओके. Your phone number word is mastery, M-E-S-T-E-R-Y, mastery, and the meaning of mastery is being extremely skilled in a particular subject or activity, okay. Particular subject it's mean a विशेष विषय, okay.
इट्स मीन कि किसी विशेष विषय, एक्टिविटी मीन्स होता है गतिविधि, ओके। तो किसी विशेष विषय या गतिविधि में अत्यंत कुशल होना, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, एक्टिविटी मीन्स गतिविधि, सब्जेक्ट मीन्स विषय, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, ओके। किसी विशेष विषय या गतिविधि में अत्यंत कुशल होना। मैस्ट्री मीन्स होता है श्रेष्ठता, ओके। And your 5 number word is captivated, okay. And here the meaning of captivated, attracted and held the interest and attention of someone. It's mean कि कैप्टिवेटेड मीन्स स्टूडेंट्स होता है आकर्षण करना, मोह लेना, ओके। और जो कैप्टिवेटेड का मीन है वो अट्रैक्टेड एंड हील्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ समवन, इट्स मीन किसी के ध्यान और रुचि को अपनी ओर आकर्षित करना, उसे बोलते हैं कैप्टिवेटेड। योर 6 number वर्ड इज virtuously, ओके, virtuosity एंड virtuosity, virtuosity इट्स मीन होता है, हियर द मीन ऑफ virtuosity, virtuosity मीन्स होता है कला प्रवीण, ओके। virtuosity, virtuosity means कला प्रवीण, and here the meaning of virtuosity, that being greatly skilled at something, particularly music. It's mean किसी चीज़ में बहुत कुशल होना, विशेष रूप से संगीत में, ओके, उसे बोलते हैं virtuosity. एंड योर 7 number वर्ड इज हॉर्निंग, ओके, HORNING, हॉर्निंग। एंड हेयर द मीनिंग ऑफ हॉर्निंग इज दैट मेकिंग समथिंग परफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स मीन हॉर्निंग मीन्स स्टूडेंट्स होता है प्रखर करना, ओके। और इसका जो मीन है मेकिंग समथिंग परफेक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स मीन होता है समय की अवधि में कुछ परिपूर्ण बनाना, क्लियर। तो स्टूडेंट वी हैव रीड एंड एक्सप्लेन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर 4 एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all these word meaning of this chapter 4. You have no problem in any word meaning, okay. So students, today's your class work is that note down this word meaning of chapter 4 in your Fair English Literature notebook. It's your today's class work, and student your homework is that learn these word meaning of chapter 4 from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework, okay. तो स्टूडेंट आपको क्लास वर्क है, आपको ये वर्ड मीनिंग एज इट इज़ अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी। फर्स्टली मीन्स CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, heading, word meaning, and after it write down this word meaning with your best handwriting. After it draw numbering and draw straight line between word and meaning with the use of skill, clear। तो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करनी वर्ड मीनिंग। आज आपका क्लास वर्क है, आपका होमवर्क कि आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से। आई गिव यू ओनली 7 वर्ड मीनिंग फॉर लर्न ऑफ दिस चैप्टर 4 in your 2 days homework, okay. So I think you have no problem for learning these word meaning because I have explained all these word meaning of this chapter 4, clear। तो आपको ये word meaning लर्न करनी है और ये आज आपका होमवर्क है। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन दिस वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 4 in your Fair English Literature notebook and send me your work here. Thank you.